Hi everyone, welcome to Experiments of a Meditator Week 3. My name is Faiz, and last week I successfully meditated all 5 days of the week. How many days did you meditate? Let me know in the comments. So, after meditating 5 days a week, I have written down my experiences and I wanted to share with you. And my intention to do this is help you motivate to take out 10 minutes of your time on a daily basis and sit down to meditate. That's the aim. So, today, let me start by talking about the purpose of these videos and the purpose of meditation. Why am I encouraging you to do it? And for that, uh, what I'm going to do is I'm not going to read out every day what I experiences because I think that wouldn't make much sense. But I've taken some more time to actually crunch my experiences as a result I want to share in this video, right? So, Monday, I've specifically written the purpose of doing this activity on a daily basis, right? And the reason, if I had to say that you should do formal meditation on a daily basis, is to find happiness or blissfulness in your daily existence, right? What I have written here is that most of us are actually searching for peace and happiness in our lives. But the truth is that peace and happiness on a daily basis, it cannot be achieved via sense pleasures or something external in our life. ठीक है, वो external नहीं है. It can only be found internal within you. And that's why meditation as an activity, that formal meditation of sitting down, closing your eyes, and looking, is important. So that's why this is the purpose of meditation, and I believe we should all try it. At least you should give it a try, right? So, having cleared what is the purpose of doing this activity and what is the purpose of me putting on this videos is to encourage you that somebody is trying this out, sharing this. So, why not I give it a try? That's the purpose. Now, second thing what I wanted to talk to you this week is that I've been talking about this word awareness कि meditation करने से awareness बढ़ जाती है, ठीक है? अब उसी awareness को लेके देखिए ये वीक मैंने क्या लिखा है कि मैं किस बात से aware हुआ. तो एक चीज़ जिससे मैं अवेयर हुआ वो उसको बोलते हैं सोशल कंपैरिजन. साइकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं सोशल कंपैरिजन. दैट मैं आई फाउंड माई सेल्फ कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स सो मैनी टाइम्स ड्यूरिंग दिस वीक. और वो कंपैरिजन बहुत पैरामीटर्स पे हो सकता है. पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं. बट द थिंग इज़, when I found myself doing it, I was aware that I am doing this. And then I figured that I don't really want to compare myself to anybody because everybody has a unique journey. So whatever reasoning आप दो, I am not trying to tamper that. But I am trying to say is that there are many things that might cause you pain in your daily existence will come up in light, once you start meditating. तो ये awareness से जुड़ता है. That's one thing I got awareness about in this week. And the second thing that came into my awareness is that I was doing a lot of things impulsively, right? तो होता क्या है कि हमारे ब्रेन के पास एक कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है ऑन अ डेली बेसिस. तो यूजुअली रिसर्च सेज दैट जब सुबह में आप उठते हो तो आपके पास बहुत सारी कॉग्निटिव कैपेसिटी होती है आपके ब्रेन के पास. तो इम्पल्स कंट्रोल बहुत हाई होता है. ज़्यादा चांसेस है कि आप सुबह में अच्छा खाना खाओगे और जो भी आपके जंक फूड है वो नहीं खाओगे. बट शाम होते होते जैसे जैसे माइंड यूटिलाइज हो जाता है तो तब इम्पल्स कंट्रोल आपका कम हो जाता है शाम में. पर ये मैंने देखा अपने ये वीक में कि मैं समटाइम्स आई एम जस्ट गिविंग इन टू माई इम्पल्सेस. For the sake of it, I am ordering food online or whatever, having junk food, whatever. So when that came into my awareness कि भाई अभी तो ये मतलब out of an impulse I am doing it, then I had a choice that to continue with that decision or not. So this is one of the advantages that I experienced in this week as impulse control. तो अवेयरनेस बकेट में मुझे दो चीज़ के बारे में बात करनी थी कि आई गॉट अवेयर अबाउट टू थिंग्स विच आई टुक केयर ऑफ. सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग. Third thing, what I wanted to talk about today
इज़ माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी. सो माइंडफुलनेस क्या है बेसिकली? मेडिटेशन जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो उससे जो स्टेट ऑफ माइंड डेवलप होता है, बुद्धिज़्म में इसको हेडफुलनेस बोलते हैं. तो माइंडफुलनेस वही है, वो स्टेट ऑफ माइंड है जो मेडिटेशन करने से आपको अवेयर होता है. हाँ, मेडिटेशन करने से आपका स्टेट ऑफ माइंड है, उसको माइंडफुलनेस बोलते हैं. और अगर जब माइंडफुल रहोगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, तो ही ये अवेयरनेस आएगी आपको ऑल द थॉर्न्स इन योर लाइफ. तो what I wanted to speak to you about is mindfulness of the body. Mindfulness of the body is actually the first step of achieving amazing mindfulness. तो उसका लेवल 1 है mindfulness of the body. तो अब होता क्या है कि अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करेंगे तो मेडिटेशन का इम्पैक्ट सिर्फ वो 10 मिनट के लिए नहीं है. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सिर्फ वो 10 मिनट में नहीं आएगा. उसका इम्पैक्ट आपके पूरे डेली एग्जिस्टेंस में आता है, हर मोमेंट में आता है. जब आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो तो भी आता है. ठीक है. अब ये तो समझना बड़ा आसान है, बिकॉज इट्स लाइक आप जिम अगर रोज़ जाते हो, उसमें एक्सरसाइज करते हो, उस 1 घंटे में एक्सरसाइज करते हो, बट आप पूरा दिन भी तो फिट रहते हो. ठीक है. पूरा दिन अगर आपको चोट लग जाएगी तो आपको जल्दी रिकवर होगा, बिकॉज आप वो 1 घंटा रोज़ जिम जाते हो. वैसे ही स्टेट ऑफ मेडिटेशन के साथ है. तो पॉइंट इज़ कि माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी इज़ समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट. तो ये वीक क्या हुआ ना, आई वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ माई बॉडी ड्यूरिंग द होल वीक. नाउ अवेयरनेस ऑफ द बॉडी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो मैंने आपको बताया कि इम्पल्स कंट्रोल. सेकेंड थिंग इज़ कि पोस्चर इज़ द कीवर्ड. उसके बारे में आप बहुत अवेयर होते हो कि डेली एग्जिस्टेंस में आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपका पोस्चर कैसा है, कैजुअल है या फिर यू आर सॉर्ट ऑफ बेंडिंग डाउन. बिकॉज जिस तरीके का पोस्चर होता है, अब जापानीज़ लोग अपना पोस्चर झुकाते हैं ग्रीट करने के टाइम. सो पोस्चर और स्टेट ऑफ माइंड में रिलेशन होता है. ठीक है. इसीलिए माइंडफुलनेस ऑफ द बॉडी फर्स्ट स्टेप है. So that's what came into my awareness, that how's my posture in my day-to-day life. और पोस्चर से अगर आप सुपरमैन पोज के बारे में पढ़ो और रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि आप अपने पोस्चर चेंज करके कैसे अपने दिमाग का स्टेट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. राइट. सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट. दैट्स द फाइनल थिंग. एंड लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट कि संडे में क्या लिखा है. यस, राइट. बेसिकली मैंने बोला ही है, मतलब आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस, बट वन लास्ट थिंग व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड योर अवेयरनेस मसल इंक्रीजेज, तो बहुत सारी अनप्लेजेंट चीज़ें भी आपके अवेयरनेस में आएगी. राइट. डेली आप जब अपने दिनचर्या कर रहे होते हो तो उसमें जो भी डिफ़िकल्ट थॉट्स हैं, आपको जो परेशान कर रहे हैं, वो आपको क्लियरली दिखेंगे कि अब ये डिफ़िकल्ट थॉट पे मैं आ गया हूँ, इसके बारे में बातें चल रही हैं मेरे दिमाग में. तो दैट विल हैपन. दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, दैट अनकंफर्टेबल फीलिंग्स विल अराइज. एंड it's not necessarily a bad thing. Only when uncomfortable feeling arise and you are able to see them, that they are thorns which I need to remove, only then you will remove it, right? That makes sense. Thank you for watching, and I'm super proud of myself that I'm continuing this, and I hope to continue and talk to you next week as well. Take care. Bye bye.